students. Welcome to Shri Sid Vidyapith School. I hope you are all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are going to begin your English chapter 2, The Merchant of Venice. It's a best known place of Shakespeare. Shakespeare is a well-known playwright and poet, and he's regarded as a greatest writer of English language and greatest dramatist. In this story, we are going to read about a cruel merchant and a kind-hearted merchant. So, The Merchant of Venice is one of the Shakespeare's best-known plays. It narrates the tale of a Shylock, a cruel Jewish moneylender who charges high interest on loans, and his enmity between the kind-hearted merchant Antonio, who lends money at zero interest. So, students, let's read the chapter to get to know what had happened in the story. Let's start it. So students, use a prescribed textbook for better understanding. I'm going to read the little bit lines of before starting the chapter. Read The Merchant of Venice from Tales from Shakespeare by the brother and sister writing team Charles and Mary Lamb. It's a Tales from Shakespeare's play Merchant of Venice, but this was a short prose. The brother and sister named Charles and Mary Lamb converted that novel into a short prose. The Merchant of Venice was a play written by Shakespeare between 1596 and 1598. It's a play written by Shakespeare, and this brother and sister converted this play into a prose. So Shakespeare was a famous English playwright. Around 200 years later, Charles and Mary Lamb decided to introduce Shakespeare's play to children in a prose form. So they wrote the Tales from Shakespeare. The book became popular with both the young and the old. So they both wrote the prose form for the children, and the book became very popular. Shylock, a wealthy usurer, lived in Venice. He used to lend money at very high rates of interest to local merchants. Shylock बोल के एक था वेनिस सिटी में, वो बहुत ही वेल्थी था, मतलब बहुत ही पैसे वाला था, बहुत रिच मनी लेंडर था. यूसरो मीन्स मनी लेंडर. वो पैसे देता था, किसी को भी लोन में पैसा देता था. और ही यूज टू लेंड मनी, मतलब वो किसी भी लोगों को, उसके सिटी में कोई भी लोगों को पैसे देता था. वो भी बहुत देता था, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेता था उस पर. लोकल मर्चेंट्स, जैसे उसकी सिटी में जैसे कोई लोकल मर्चेंट्स है, किसी को पैसों की ज़रूरत हो तो पैसा लोन में देता था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था उस पर. He was a hard-hearted man and was disliked by all good men, particularly by Antonio, a young merchant of Venice. So ही इज़ मतलब वो बहुत ही बुरा आदमी था. हार्ड हार्टेड मीन्स उसमें कोई फीलिंग्स नहीं थी, उसमें कोई इमोशंस नहीं थी, कोई किसी के प्रति उसके मन में दया नहीं थी, किसी बेचारे के मन में, किसी पूर के लिए, किसी गरीब के लिए उसके मन में कोई इमोशंस नहीं थे. वो सबको एक समान ट्रीट करता था, मतलब वो सबके लिए एक जैसा इंटरेस्ट ही लेता था. अगर वो पैसा देता था तो उसे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए रहता था. और ये शाइलॉक सब बहुत, मतलब उसे कोई पसंद नहीं करता था वेनिस सिटी में. पर्टिकुलरली एंटोनियो बोल के एक यंग मर्चेंट था वेनिस में, उसे तो शाइलॉक बिल्कुल पसंद नहीं. Shylock too hated Antonio because the latter used to lend money to people when they were in trouble and would never take any interest for the money he lent. Antonio भी Shylock को भी Antonio बिल्कुल पसंद नहीं था. क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि एंटोनियो भी मुसीबत में लोगों को मदद करता था, पैसे देता था, लेकिन वो कभी भी उनसे इंटरेस्ट नहीं लेता था, और वो कभी भी पैसा जल्दी देने के लिए उन लोगों को ज़ोर नहीं करता था. वो एंटोनियो बहुत ही अच्छा था. वो किसी को मतलब पैसे देता था तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेता था उसके लिए. सो Antonio was a kind man and was greatly loved by all his fellow citizens.
एंटोनियो बहुत ही काइंड था, मतलब वो बहुत ही अच्छा था। उसे गरीब लोगों या फिर उसके मतलब वेनिस सिटी में जो लोकल पीपल है उनके प्रति वो बहुत ही दयालु था, बहुत ही अच्छा था, सबसे एकदम अच्छा से बात करता था, सबके लिए वो काइंड पर्सन था। और वो वहाँ के वेनिस के सारे सिटीजन्स उसे पसंद भी करते थे। क्यों? क्योंकि उसकी काइंडनेस की वजह से। हिज डियरेस्ट फ्रेंड बसीनियो, उसका सबसे डियरेस्ट फ्रेंड कौन था? बसीनियो, who had nearly spent all his fortune by living in a very lavish manner, was often in need of money. बसीनो जो था, बसीनो अपना सारा फॉर्चून, उसके पास जितना भी ये था, जितना भी उसके पास वेल्थ था, वो सारा उसने खर्च कर दिया। मतलब उसके पास जितना भी पैसा था, जो भी था, वो सारा एकदम यूज़ कर लिया अपने। वो एक मतलब हमेशा से वो लैविश लाइफ जीने की कोशिश करता था। मतलब वो बहुत ही रिच तरीके से लग्जरियस लाइफ जीने के कारण उसके पास जितना भी फॉर्च्यून था, मतलब उसके पास जितना भी फॉर्च्यून वगैरह था, वो सब खर्च हो गया, वो सारा खर्च कर दिया। अब उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी। एंटोनियो असिस्टेड हिम एवरी नाउ एंड देन, और एंटोनियो उसे हर वक्त उसे असिस्ट करता था, मतलब उसको एडवाइस देता था, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करने से अच्छा है, वैसा करने से अच्छा है। नेक्स्ट, one day Basino came to Antonio and told him that he wished to marry a lady whom he dearly loved and whose father had left her a large estate, but not having money to furnish himself. तो नेक्स्ट डे बसीनो एंटोनियो के पास आया और उसे कहा कि मैं एक लेडी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो एंटोनियो से बता रहा था कि उस जो लड़की से वो शादी करने वाला है, उसके पापा वो लड़की के लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के गए, एक लार्ज इस्टेट उसके लिए छोड़ के गए हैं। पर अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं अपने आप को फिर से मतलब उसके लायक बना सकूँ। उस लेडी जिससे वो शादी करना चाहता है, वो लेडी वो रिच थी, उसके पापा उसके लिए बहुत कुछ छोड़ के गए थे, लेकिन अब बसीनो के पास कुछ भी नहीं था कि मैं वो अब उस लड़की से शादी कर पाए। अब वो पूरी तरह से वो क्या बोलते सब यूज़ कर लिया, तो वो मतलब उसके पास कुछ भी नहीं बचा उसकी फॉर्च्यून। तो वो एंटोनियो के पास आके मदद मांग रहा था। Suitably to marry a rich heiress, he approached Antonio to lend him 3,000 ducats. So अभी उसको बसीनो को उस लड़की से शादी करना था, तो वो बहुत ही रिच थी। वो रिच हेरेस मीन्स वो रिच, अब वो प्रिंसेस थी। तो अब वो एंटोनियो के पास आया और उसे 3,000 डकेट्स मांग रहा था। अभी उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वो एंटोनियो से मांग रहा था। कितना? 3,000 डकेट्स। एंटोनियो हैड नो मनी विथ हिम एट दैट टाइम टू लेंड हिज फ्रेंड, बट एक्सेप्टिंग टू हैव सम शिप्स कम होम सून विथ हिज गुड्स। अब एंटोनियो के पास भी कुछ पैसा नहीं बचा था, तो अब वो बसीनो को देने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं बचा था। तो वो बोला कि पर मेरा शिप्स जो आने वाला है उसमें, वो अभी बस एक ही होप में था कि उसका शिप्स आएगा तो उसमें जो गुड्स है उसको बेच के शायद वो पैसा बना सके। तो वो बोल रहा बट एक्सपेक्टिंग टू हैव सम शिप्स कम होम विथ सून विथ हिज गुड्स, तो ही सेड ही वुड गो टू शाइलॉक एंड बोरो द मनी अपॉन द क्रेडिट ऑफ दोज शिप्स। तो एंटोनियो बोल रहा था कि मैं अब शाइलॉक के पास जाके पैसे मांगता हूँ और उसे क्रेडिट के तौर पे मैं अपना शिप्स दे देता हूँ। मतलब क्रेडिट मीन्स अब वो वहाँ गिरवी रखना चाहता है, तो वो अपने शिप्स को गिरवी रख कर उससे पैसा मांगने की सोच रहा है। कौन? एंटोनियो। किसके लिए? बसीनो के लिए। एंटोनियो एंड बसीनो वेंट टू शाइलॉक एंड रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड देम 3,000 डकेट्स। अब एंटोनियो और बसीनो ने शाइलॉक के पास गया और उससे 3,000 डकेट्स मांगे। अपॉन एनी इंटरेस्ट ही शुड रिक्वायर टू बी पेड आउट ऑफ द गुड्स कंटेन्ड इन शिप्स एट सी। तो अब इंटरेस्ट के तौर पे वो बोला कि मुझे वो गुड्स जो था शिप्स में वो बेचकर वो उसे इंटरेस्ट दे देगा। मतलब वो जो गुड्स वगैरह है वो शिप्स के साथ साथ उसमें जो गुड्स भी है वो शाइलॉक को दे दिया। बोल रहा अब जो शिप तो तुमको मैं दे रहा हूँ, पर उसमें जो गुड्स है वो भी तुम ही रख लो इंटरेस्ट के तौर पे।
Shylock said, Signor Antonio, very often you have railed at me and I have borne it with patient shrug. शाइलॉक कभी बोला, सिग्नो एंटोनियो, तुमने मुझ पर बहुत बार मुझ पे तुमने गुस्सा किया, पर पर मैं तो उसी से, मैं तो पेशेंस रखूँ, मैं तो पैदा ही मैं तो एक बॉर्न पेशेंस रखूँ. Shylock said, Signor Antonio, very often you have railed at me and I have borne it with a patient shrug. तो अब शाइलॉक एंटोनियो से कह रहा है, सिग्ना एंटोनियो, तुम तो मुझ पे हमेशा, तुम मुझे मेरे बारे में सिर्फ कंप्लेंट ही करते रहते हो, वो भी बहुत कड़वी, मतलब वो बहुत ही, एंटोनियो को शाइलॉक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो हमेशा इसके अगेंस्ट में ही था. Well then, it now appears you need my help. Do you think I should lend you 3000 ducats? तो अब बोल रहा है, ठीक है, फिर अब लगता है तुम्हें तो मेरी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो क्या मैं तुम्हें 3000 ducats दूँ? Antonio replied, if you will lend me this money, lend it to me, not as to a friend, but rather lend it to me as an enemy. तो अब एंटोनियो बोल रहा है, अगर तुम मुझे ये पैसा देने चाहते हो तो सिर्फ मुझे ही देना, पर एज अ फ्रेंड के तौर पे मत देना, एज अ एनिमी के तौर पर ही तुम मुझे ये मनी देना. And then Shylock pretended to be kind and said he would lend him the 3000 ducats and take no interest for his money. Only Antonio should go with him to a lawyer and sign in merry sport a bond that if he did not repay the money by a certain day, he would forfeit a pound of flesh to be cut off from any part of his body that Shylock pleased. अब शाइलॉक बहुत ही काइंड प्रिटेंड कर रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, ठीक है, मैं तुम्हें 3000 ducats तो दूंगा और मैं तुमसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लूँगा. अब तो बात गड़बड़ है, अब वो पैसा दे भी रहा है बट इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है. ओनली एंटोनियो शुड गो विथ हिम, पर वो एक शर्त पे बोला, सिर्फ एंटोनियो को उसके साथ बुला रहा है. किसके पास जाने के लिए? लॉयर के पास जाने के लिए एंटोनियो को अकेले में बुला रहा है. चलो तुम मेरे साथ लॉयर के पास और एक बॉन्ड साइन करना जिसमें ये लिखा रहेगा कि तुम अगर मुझे पैसा अगर ठीक टाइम पे नहीं दे, जो डेट में मैं लिख के दूंगा, अगर तुम वो डेट पे मुझे नहीं दे पाए तो मुझे वुड फॉरफिट अ पाउंड ऑफ फ्लैश. फॉरफिट मतलब सैक्रिफाइस, तुम्हें 1 पाउंड ऑफ फ्लैश मुझे सैक्रिफाइस करना होगा, और वो भी मैं अगर तुम्हारे बॉडी से, मैं जहाँ से चाहूँगा मुझे वहाँ से वो फ्लैश चाहिए. टू बी कट ऑफ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी, मतलब वो कहीं से भी वो मांग सकता है. जिस दिन वो पैसा उसे वापस नहीं कर पाएगा एंटोनियो. आई विल साइन दिस बॉन्ड सेड एंटोनियो. एंटोनियो बोला, ठीक है, मैं ये बॉन्ड साइन कर दूँगा. At last, against the advice of Basino, Antonio signed the bond. फिर एंटोनियो, बसीनो के लाख उसे मतलब बसीनो ने कहा, नहीं, तुम एकदम उसे साइन मत करो, कोई ज़रूरत नहीं हमें उसके पैसों की. लाख समझाने के बावजूद एंटोनियो ने बॉन्ड साइन कर दी. द रिच हेयरिस दैट बसीनो विश टू मैरी लिव नियर वेनिस, और जो बसीनो जिस लड़की से शादी करना चाहता था वो वेनिस के पास में ही रहती थी. एट अ प्लेस कॉल्ड बेलमोंट. वो प्लेस कहाँ है? बेलमोंट है. वेनिस के पास एक प्लेस है बेलमोंट, वहाँ रहती थी. हर नेम वॉज पोर्शिया, उसका नाम पोर्शिया था. Basino now set out for Belmont attended by another friend by the name of Gracchino. तो बसीनो अब बेलमोंट जाने के लिए तैयार हुआ अपने दूसरे फ्रेंड के साथ. उसका नाम है ग्रेशिनो. Basino was successful in winning the hand of Portia and confessed to her that he had no fortune. और बसीनो एकदम पोर्शिया से शादी करने के लिए सक्सेसफुल रहा, और ये भी पोर्शिया को बताया कि अब मेरे पास कोई फॉर्च्यून नहीं बची, अब उसके पास कोई धन दौलत नहीं बची है. शी हु लव्ड हिम फॉर हिज वर्थी क्वालिटीज आंसर्ड, myself and what is mine is now yours. I gave them with this ring, and she presented a ring to Basino.
जो पोर्शिया जो पैसों के लिए नहीं उसके क्वालिटीज़ के लिए बसीनो से प्यार करती थी, ये बोली अब से जो भी मेरा कुछ है वो सारा तुम्हारा है और मैं तुम्हें ये एक रिंग देती हूँ। बसीनो को उसने एक रिंग प्रेजेंट किया और ये सब कह के बसीनो को वो एक रिंग प्रेजेंट की। Basino was so overpowered with gratitude at a gracious manner that taking the ring, he vowed never to part with it. बसीनो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बहुत ही ग्रेटफुल था पोर्शिया के इस ग्रेशियस मैनर, मतलब वो इतनी डाउन टू अर्थ थी, उसका ये व्यवहार देख के उसे बहुत ही अच्छा लगा और उसने रिंग एक्सेप्ट किया और ये प्रॉमिस किया कि वो कभी भी इस रिंग को अपने से दूर नहीं करेगा। Gracchino and Nerissa, Portia's maid-in-waiting, took a liking to each other and wished to be married at the same time as Basino and Portia. अब जो बसीनो के साथ दोस्त गया था ग्रेशिनो और नेरिसा, पोर्शिया की मेड थी, वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों भी शादी करना चाहते थे। वो दोनों भी उसी दिन शादी करना चाहते थे जिस दिन बसीनो और पोर्शिया की शादी है। Their happiness was turned to grave sorrow by a messenger who brought a letter from Antonio. अब इन लोगों की खुशी तब सौरों में बदल गई जब एक मैसेंजर आया और उसने एक लेटर एंटोनियो के वहाँ से लेके आया। When Basino read the Antonio's letter, he turned pale. He then told Portia of his borrowing the money from Antonio. जैसे ही बसीनो ने एंटोनियो का लेटर पढ़ा, उसका मुंह एकदम मतलब पेल हो गया, अब उसके रंग उड़ गए उसके मुंह फेस से, वो अब खुश नहीं था और उसने पोर्शिया को बताया पूरा स्टोरी कि वो पैसा लिया एंटोनियो से and of Antonius procuring it from Shylock and of the bond by which Antonia had agreed to forfeit a pound of flesh if it was not repaid by a certain day. अब बसीनो ने पोर्शिया को पूरा स्टोरी बताया उसके पैसा बोरो करने का शाइलॉक से और शाइलॉक ने क्या शर्त रखी एंटोनियो के सामने। उसने क्या मांगा, उसने एक पाउंड ऑफ फ्लैश मांगा एंटोनियो का अगर वो उस दिन अगर ठीक टाइम पे पैसा वापस नहीं किया तो। बसीनो then read Antonio's letter, the words of which were, "Sweet Basino, my ships are all lost, my bond to Shylock is forfeited, and since in paying it, it is impossible I should live, I wish to see you at my death." उस लेटर में क्या लिखा था, मेरे प्यारे बसीनो, मेरे सारे शिप्स लॉस्ट हो गए, मतलब वो उसके सारे शिप्स कहीं घूम गए, मतलब वो किसी दूसरे डायरेक्शन में चले गए होंगे, गुम हो गए। अब वो बोल रहा है कि अब मेरा बॉन्ड जो है शाइलॉक को सैक्रिफाइस, जो बॉन्ड मैंने शाइलॉक के साथ की वो तो मुझे पूरा करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को अपना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो अब उसे पे नहीं कर पाऊँगा और अब मैं जीऊँगा कि मरूँगा नहीं पता। अगर वो बोल रहा है मैं तुम्हें अपने ग्रेव पर देखना चाहता हूँ। वो Portia then said that she would be married to Basino before he set out to give him a legal right to her money. Portia उसके बाद बसीनो से शादी करने के लिए रेडी हो गई। उन लोग पहले मतलब वो जिस दिन शादी की डेट तय हुई उससे पहले शादी करने के लिए रेडी हो गए और उसने सारा पैसा जो है बसीनो के नाम करने के लिए भी रेडी हो गई। एंड दैट सेम डे दे वे मैरिड, और उसी दिन उन लोगों ने शादी कर ली। एंड ग्रेशिनो वॉज ऑल्सो मैरिड टू नेरिसा, और ग्रेसिनो जो बसीनो का दोस्त था वो भी नेरिसा से शादी कर लिया। बसीनो एंड ग्रेसिनो सेट आउट इन ग्रेट हेस्ट फॉर वेनिस, वे बसीनो फाउंड एंटोनियो इन प्रिजन। उसके बाद बसीनो और ग्रेशिनो जल्दी वेनिस के लिए निकल गए और बसीनो ने एंटोनियो को कहाँ देखा, एंटोनियो को प्रिजन में देखा। अब वो एंटोनियो प्रिजन में बंद था। So students, here is the half part of this chapter, the Merchant of Venice. I will complete the rest part in the next video. Students, read the chapter thoroughly, try to understand what's the story. So students, if you have any doubts regarding this chapter, you can ask me. I am going to clear it out in the next video. Until then, read the chapter.